Hello students, welcome to One Day Law Revision Module 4 Dowry Prohibition Act 1961. Dowry means Dahej. So let's quickly go through the synopsis first. In these we will see dowry a social menace, objectives and scope of the act, dowry defined under section 2, penalty for giving and taking dowry section 3, dowry for benefit of the wife or her heirs section 6, change in procedural law and evidence law section 113b of evidence law, dowry prohibition officer section 8. So point number 1, dowry a social menace. Now menace means like a burden on the society. Like now marriage is an integral part of the society, right? It is a source of joy, festival. Marriage means what? A reason to be happy. Marriage जहाँ पे हम खुश होते हैं. Happiness, celebration, joy. सबसे मेन चीज़ जो हम यहाँ देखते हैं वो है लेन देन. जितना शादियों में खुशी है उतना ही एक लॉन्ग लास्टिंग ईविल चीज़ भी इसमें है, दैट इज़ दहेज, डाउरी. बहुत सी सेंचुरी से ये प्रथा चली आ रही है. पहले कुछ अलग रीज़न से, अभी कुछ अलग रीज़न से. इवन बीइंग इन 21st सेंचुरी हम देख रहे हैं कि अभी भी डाउरी चल रही है. डाउरी मीन्स सिंपल मीनिंग क्या? तो दूल्हे के घर वाले प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, दुल्हन के घर वाले दूल्हे के घर वाले को दे रहे एट द टाइम ऑफ मैरिज, दैट इज़ डाउरी. डाउरी एक ऐसी चीज़ है जो एंशिएंट डेज से चलती आ रही है और आज तक हमारी सोसाइटी में है. एक ये वॉलंटरी कस्टम हो गया है. अप टू सम एक्सटेंट ठीक है, इट्स ओके, बट एक्सटेंट के बाहर जहाँ पे इट्स अ प्रेशर, देन इट्स नॉट गुड. मतलब डाउरी ये एक ऐसा वर्ड है जो दो चीज़ें लाता है. खुशियाँ भी लाता है, जॉय, और कर्ज भी लाता है. खुशियाँ किसके घर में? जिसको पैसा प्रॉपर्टी मिल रही है, मनी प्रॉपर्टी को मिल रही है ब्राइड ग्रूम को. ये कौन रहा है? ब्राइड की फैमिली. तो इट्स अ कर्ज फॉर देम. The parents of the brides have to bear a lot of expense, enormous cost, unreasonable demand of the bridegrooms. कार चाहिए, ये चाहिए, and all, and then it results into a lot of loan on the family of bride. तो जो ये डिमांड है, it doesn't stop even after marriage. It goes on, and goes on. So the in-laws of the bride are so much like, they behave like a greedy that they start insulting the bride, they start harassing her, they start torturing her mentally, physically, both. Then she comes in that pressure. First what she will do, she will go to the family, we want this and that and that. But after a certain limit, when she is harassed, she sees her family condition, and considering the pressure on her parents, father, she has no other option than committing the suicide. What option she will choose here? She will try to commit suicide to avoid more insult, you can say torture, can be both mental, physical, harassment. To avoid all this, what she will do? She will commit suicide. Now this is what we say dowry is a social menace. Why? Because it is leading to oppression of women, right? दबाव है उनके ऊपर. Domestic violence in any form, and a source of emotional stress, obviously stress on female soul. Thus with dowry has become a social menace. You can write this question can come as a theory question, dowry a social menace, so you can write all these points. Now Dowry Act, let's see the act. Section 1, short title, extent and commencement. The act is called as the Dowry Prohibition Act 1961. It extends to whole of India, that except Jammu Kashmir concept is gone from 2019. There is no Jammu Kashmir different. And the act came into force on such date as central government may by notification in the official gazette appoint, that is 1st July 1961. So the act came into force on this date. The long title of the act is an act to prohibit the giving or taking of dowry. So we prohibit both the things, giving as well as taking of the dowry. And what is the objective?
The objective stated is to prohibit the practice of dowry, both giving and taking. However, at the same time, the intention is not to penalize all voluntary exchanges of gifts given at the time of marriage or during the course of marriage. So, prohibiting dowry is important. We penalize those things, बट नॉट टू पेनलाइज ऑल दी वॉलंटरी एक्सचेंजेस, क्योंकि कुछ प्रथाएं भी होती है, कुछ कस्टम्स भी होते हैं वेर वी हैव टू गिव दी गिफ्ट्स, वी कॉल इट शागुन. सो उन चीज़ों को पेनलाइज नहीं करना विच आर रिक्वायर्ड, हमारे कस्टम में है, ट्रेडिशन में, एट द टाइम ऑफ मैरिज और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैरिज. डेफिनेशन ऑफ डाउरी गिवन इन सेक्शन 2. डाउरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या तो प्रॉपर्टी या तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी, गिवन और अग्रीड टू बी गिवन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो हम देने वाले हैं या तो अग्री कर चुके हैं हम, मीन्स ब्राइड्स फैमिली, बाय वन पार्टी टू अ मैरिज टू द अदर पार्टी टू द मैरिज. वन पार्टी मतलब ब्राइड की फैमिली इसको दे रही है ब्राइड ग्रूम की फैमिली को, दुल्हन की फैमिली दूल्हे की फैमिली को दे रही है. ठीक है. पेरेंट्स ऑफ आइदर पार्टी, दुल्हन के पेरेंट्स दे रहे किसको, किसी भी पर्सन को दूल्हे के साइड के, या टू आइदर पार्टी टू द मैरिज और एनी अदर पर्सन. कब दे रहे, बिफोर और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज, मैरिज के पहले, मैरिज के टाइम पे या मैरिज के बाद, इन कनेक्शन विद द मैरिज, राइट ऑफ सेड पार्टीज. अब इसमें बट डज नॉट इंक्लूड, डेफिनेशन में एक चीज़ है बट डज नॉट इंक्लूड डोवर. डोवर क्या होता है, डोवर को हर भी बोलता है, आई थिंक द इस्लामिक वर्ड, यस इस्लाम. का मीनिंग ये है कि मुस्लिम लॉ में दैट इज डोवर मीन्स कुछ पैसा, कुछ प्रॉपर्टी जो वाइफ को हस्बैंड देता है इन द मैरिज एज अ सेफ्टी ऑफ वाइफ या ऐसे कुछ. इट इज़ नॉट कंसिडर्ड as that of civil contract, but it is a obligation imposed upon the husband as a mark of respect to the wife. मतलब वाइफ की रिस्पेक्ट है ये, वाइफ के प्रोटेक्शन के लिए हस्बैंड शादी में कुछ पैसा वाइफ को देता है. दिस इज गिवन इन मुस्लिम लॉ. तो इसको हम डाउरी के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे. तो डाउरी मीन्स व्हाट, कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो दी है या हम फ्यूचर में देने वाले हैं, by one party to a marriage to another party, or by parents of either party to another party, या to either party to the marriage or any other person at the time of marriage, before marriage or after marriage, but does not include the Muslim law dower. ठीक है. मुस्लिम लॉ में जो डोवर कंसेप्ट है, जहाँ हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट देता है, वो इंक्लूड नहीं किया गया है डेफिनेशन. क्लियर विद द डेफिनेशन. नाउ पेनाल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी. If any person after the commencement of this act gives or takes or abates means encourages, कोई ऐसा इंसान जो या तो डाउरी दे रहा है या ले रहा है या डाउरी को एनकरेज कर रहा है, द गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी, तो उसको इम्प्रिजनमेंट है, जेल है, और अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years. 5 years से ज़्यादा का ही, मोर देन और इक्वल टू 5 years. और फाइन भी है, विच शैल नॉट बी लेस देन, फाइन कितना है 15,000 रुपीज़, या फिर द अमाउंट ऑफ डाउरी विच एवर इज मोर, तो यही होगा द अमाउंट मोर, प्रोवाइडेड दैट अगर कोई एडिक्वेट स्पेशल रीज़न है तो इन दैट केस कोर्ट जो है वो इम्प्रिजनमेंट का टर्म 5 years से कम कर सकता है. अब नथिंग इन सबसेक्शन 1, ये था सबसेक्शन 1, दिस इज सबसेक्शन 2, शैल अप्लाई टू और इन रिलेशन टू, मतलब सबसेक्शन 1 की कोई भी चीज़ सबसेक्शन 2 को नहीं लगेगी. कब, पेरेंट्स प्रेजेंट्स विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज टू द ब्राइड विदाउट एनी डिमांड हैविंग बीन मेड ऑन दैट बिहाफ. मतलब ऐसे गिफ्ट्स जो दुल्हन को मैरिज के टाइम पे मिल रहे हैं जिसकी उन्होंने डिमांड नहीं की है, बट वो जो प्रेजेंट्स है दैट आर टू बी एंटर्ड इन अ लिस्ट मेंटेन इन अकॉर्डेंस विथ रूल्स. तुमको एक लिस्ट मेंटेन करना पड़ेगा कि तुमको क्या प्रेजेंट मिला, किस वैल्यू का मिला, किस रिलेशन से मिला, क्योंकि एक लिमिट के ऊपर भी गिफ्ट मिलना मीन्स दैट इज कंसिडर्ड एज अ डाउरी. अब दूसरा है प्रेजेंट्स जो ब्राइड ग्रूम को मिले, जो दूल्हे को मिले विदाउट एनी डिमांड, तो वो नहीं कंसिडर होंगे, मतलब उस पर ये पेनल्टी नहीं लगेंगी जो सबसेक्शन 1 में दिए.
बट फिर अगेन तुमको वो लिस्ट मेंटेन करना है इन अकॉर्डेंस विथ रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट. Provided further that where such presents are made by or on behalf of the bride or any person related to the bride, such presents are of customary nature, वो customary nature के होने चाहिए और उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए with regard to financial status of the person by whom और by whose behalf the presents are given. क्योंकि अगर उसका वैल्यू भी बहुत है, considering the relation, considering the financial status, then it will be considered as a dowry. तो फिर वहाँ पे ये सबसेक्शन 2 अप्लाई नहीं होगा, सबसेक्शन 1 अप्लाई होगा और वो पर्सन को इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, जेल हो जाएगा एंड ही विल बी लाइबल टू फाइन ऑफ 15,000 और वॉट एवर द अमाउंट इज विच एवर इज हायर. सेक्शन 4 पेनाल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी. अगर कोई पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिमांड कर रहा है डाउरी, किससे? फ्रॉम द पेरेंट्स या रिलेटिव्स ऑफ द ब्राइड या ब्राइड के गार्डियन से और ब्राइड ग्रूम एज द केस में भी, तो वो पर्सन जो डिमांड कर रहा है ही शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म नॉट लेस देन 6 months, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 months, विच में एक्सटेंड टू 2 years. यहाँ पे 6 months से 2 months तक का पीरियड है. एंड फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 और फाइन कहाँ तक की? 10,000 रुपीज़ तक की. अगर कोर्ट के पास कोई स्पेशल और एडिक्वेट रीज़न है तो कोर्ट उस केस में इम्प्रिजनमेंट को लेस कर सकता है, या हाँ राइट, इम्प्रिजनमेंट को लेस देन 6 months कर सकता है. अब जो अग्रीमेंट है गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी, अगर ऐसा कोई अग्रीमेंट बनता है तो दैट शैल बी ट्रीटेड एज वॉइड. वो वॉइड है, कैंसल्ड अग्रीमेंट है. डाउरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ और हेयर्स. अगर कोई इंसान को कोई डाउरी मिल रही है बाय एनी पर्सन अदर देन द वुमेन इन कनेक्शन विथ हुज मैरिज इट इज़ गिवन, इसकी शादी को लेके दिया है, तो जो भी डाउरी उस पर्सन को मिल रही है वो क्या करेगा? उस वुमेन को ट्रांसफ़र कर देगा. अगर किसी इंसान को उस वुमेन के कनेक्शन में डाउरी मिल रही है बिफोर मैरिज, अगर शादी की मिल रही है, शादी का जो डेट है उसके 3 महीने में, विद इन 3 months आफ्टर द डेट ऑफ मैरिज तुमको वो देना है. अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज और आफ्टर मैरिज अगर मिल रही है तो 3 months आफ्टर द डेट ऑफ रिसीट, मतलब जिस दिन तुमको मिला वहाँ से 3 months ऐड करो एंड यू हैव टू गिव द डाउरी. अगर वो डाउरी जब मिली तब वुमेन वॉज अ माइनर, छोटी बच्ची थी, शादी हो गई एंड तब तुमको डाउरी मिली, 3 months आफ्टर शी अटेंड द एज ऑफ 18 years, मतलब जब वो मेजर हो जाएगी तब वहाँ से 3 months के अंदर तुमको वो डाउरी का अमाउंट लड़की को देना पड़ेगा. Till then the person shall hold it in trust for the benefit of woman. अगर कोई पर्सन ऐसा डाउरी ट्रांसफ़र करने में फेल हो जाता है, मतलब विद इन 3 months का जो लिमिट है, इफ़ ही फेल्स, तीनों के अलग कंडीशन है, बिफोर का, आफ्टर का और माइनर केस का, इफ़ ही फेल्स तो ही विल बी लाइबल टू पनिशमेंट. ही शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म नॉट लेस देन 6 months, विच में एक्सटेंड टू 2 years, सेम 6 months to 2 years, और फाइन है विच इज़ नॉट लेस देन 5,000 एंड विच कैन एक्सटेंड टू 10,000. तो इम्प्रिजनमेंट कितना है? 6 months से 2 years और फाइन है 5,000 से 10,000 तक का, इफ़ यू आर नॉट गिफ्टिंग इट बैक टू द ब्राइड. वेर द वुमेन एंटाइटल टू एनी प्रॉपर्टी अंडर सबसेक्शन 1, अब जिसको वो देना था वो मर जाती है, इफ़ शी डाइज बिफोर रिसीविंग इट, तो उसके जो लीगल हेयर्स है वो डाउरी को क्लेम कर सकते हैं. अगर चिल्ड्रन नहीं है तो इट शैल बी ट्रांसफर्ड बैक टू हर पेरेंट्स. इफ शी हैज़ अ चिल्ड्रन ही ट्रांसफर टू सच चिल्ड्रन एंड पेंडिंग सच ट्रांसफर बी हेल्ड इन ट्रस्ट ऑफ सच चिल्ड्रन. अगर बच्चे हैं तो बच्चों को दे दो, माइनर है तो हेल्ड इन ट्रस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, अगर बच्चे नहीं है तो ट्रांसफर इट बैक टू हर पेरेंट्स. वेर अ पर्सन कॉन्विक्टेड अंडर सबसेक्शन 2 फॉर फेलियर ऑफ ट्रांसफर. सबसेक्शन 2 में हमने क्या देखा? अगर कोई पर्सन वो प्रॉपर्टी वापस ब्राइड को ट्रांसफ़र नहीं करता है तो ही विल बी पनिशेबल. तो वो जो इंसान है ही शैल बी पनिशेबल. ही विल हैव टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी टू द वुमेन एंटाइटल्ड डेड टू, और द केस में भी हर है पेरेंट और चिल्ड्रन. मतलब द पर्सन हु फेल टू ट्रांसफ़र, अब उसको वो पेनाल्टी भी है, पनिशमेंट्स भी है, एंड नाउ ही विल हैव टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी बैक टू द वुमेन, हैज़ पेरेंट्स और चिल्ड्रन एज द केस में भी. And the court will order this by ordering in writing that person shall transfer it to the woman within such period as specified by the court,
एंड इफ सच पर्सन फेल्स टू कंपेल विद द डायरेक्शन विद इन द पीरियड सो स्पेसिफाइड, अगर जो कोर्ट के डायरेक्शन है वो भी अगर वो इंसान फेल करता है, इफ इट डज नॉट कंप्लाई, तो एन अमाउंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी में बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम, जितने की भी प्रॉपर्टी वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाया इवन आफ्टर द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, तो उसको उतना इक्वल अमाउंट उससे रिकवर किया जाएगा एंड दैट विल बी ट्रांसफर्ड as if it were a fine imposed by such court and paid to such woman. So that will be considered as a fine by court and then that will be transferred to that woman, या अगर वो नहीं है तो उसके हेयर, पेरेंट्स या चिल्ड्रन. Nothing contained in this section shall affect provisions of section 3 and 4. अभी ये जो section दिया है 6 for the benefit of wife or heir, इसके वजह से section 3 और 4 चेंज नहीं होगा. 3 was penalty for giving or taking dowry और 4 was for demanding dowry. सेक्शन 6 की कोई भी बातें सेक्शन 3 और 4 को इफेक्ट नहीं करेगी. सेक्शन 8A बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टन केसेस. अगर किसी पर्सन पे चार्ज लगाए कि उसने डाउरी लिया है या एनकरेज किया है द टेकिंग ऑफ डाउरी, या उसने डाउरी डिमांड की है अंडर सेक्शन 4, तो बर्डन कि उसने ये क्राइम कमिट किया है या नहीं इज ऑन हिम. ही विल हैव टू प्रूव, सो द बर्डन लाइज ऑन दैट पर्सन. Section 8B Dowry Prohibition Officer. The state government appoints the dowry prohibition officer as many as they want and specify the area of jurisdiction and powers under the act. अब dowry prohibition officer के क्या powers है, क्या functions है? He has to see that the provisions of the acts are complied with. Provisions are complied. Prevent as far as possible the taking or abating the taking of demanding of dowry means encouraging the taking of dowry. To collect evidence as may be necessary for prosecution of person committing offence and then the liability will be on the person to prove his innocence. 8A. To perform such additional function as may be assigned to him by the state government or as per the rules specified under the act. ये हो गए powers and functions. Can be a question, स्पेशल क्वेश्चन ऑन डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर. लिखना कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं एज मैनी डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर एज दे वांट और उनका ज्यूरिसडिक्शन फिक्स करते, एरिया फिक्स करते, फिर उनके पावर्स एंड फंक्शंस. अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट क्या कर सकती है, कन्फर सच पावर्स ऑफ अ पुलिस ऑफिसर एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन. तो फिर उस केस में डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर वो सब पावर एक्सरसाइज करेगा जो कि उसको स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है. तो सच लिमिटेशन एंड कंडीशन दैट आर स्पेसिफाइड इन द रूल्स, जो स्टेट गवर्नमेंट जो रूल देगा उतने लिमिट तक के पावर्स डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर को मिल जाएंगे. स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ एडवाइजिंग एंड असिस्टिंग द ऑफिसर इफ दे वांट, एक टीम देंगे उनको, एक एडवाइजरी बोर्ड अपॉइंट करेंगे फॉर द इफिशिएंट वर्किंग, जिसमें नॉट मोर देन 5 सोशल वेलफेयर वर्कर्स विल बी देयर. तो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के लिए एक टीम भी रह सकती है, एडवाइजरी बोर्ड, जहाँ पे 5 पर्सन रहेंगे, आई मीन नॉट मोर देन 5, और उसमें से एटलीस्ट 2 शुड बी वुमेन, एटलीस्ट 2 फ्रॉम द एरिया इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सच डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर एक्सरसाइजेज ज्यूरिसडिक्शन. और वो वुमेन कहाँ से रहेंगे, उसी एरिया से जहाँ पे डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर का ज्यूरिसडिक्शन है, विच इज मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1 कि वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी. तो दिस वाज अबाउट डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर. नाउ प्रोविजंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एंड इंडियन पेनल कोड. अब जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसका सेक्शन नंबर 113B क्या बोलता है, इट डील्स विद डाउरी डेथ, मतलब डाउरी की वजह से डेथ हो जाना. वो क्या बोल रहा है, उसका सेक्शन का नाम है प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ, जहाँ पे व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्सन हैज कमिटेड द डाउरी डेथ ऑफ अ वुमन एंड इट इज शोन दैट सून बिफोर हर डेथ, जहाँ पे किसी पर्सन की वजह से डाउरी डेथ हुई है और वो प्रूव किया गया है कि उसके डेथ के थोड़ा टाइम पहले ही हैज़ बीन सब्जेक्टेड बाय सच पर्सन टू क्रुएलिटी, उस पर्सन ने उस ब्राइड के साथ, उस वुमेन के साथ कुछ क्रुएलिटी की थी, वो हैरास किया था या फिर उससे डाउरी मांगी थी, मतलब इन कनेक्शन विद द डाउरी उसने उस वुमेन को हैरास किया था या क्रूअली बिहेव किया था, तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि उस पर्सन की वजह से ही उस वुमेन की डेथ हुई है. तो द पर्सन हैड कॉज ऑफ डाउरी डेथ.
डाउरी डेथ का सेम मीनिंग, ये कंसेप्ट डाउरी डेथ, ये सेम कंसेप्ट इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 113B में दिया है और इंडियन पेनल कोड IPC के सेक्शन 304B में दिया है। जहाँ अब इसमें क्या है वर्डिंग्स, जहाँ पे एक औरत की डेथ होती है, एक वुमन की डेथ होती है कॉज्ड बाय बर्न्स और बॉडीली इंजरी अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, मतलब नॉर्मली कुछ खाना वाना बनाते हुए ये सब छोड़ के अगर उसको कुछ बर्न से या कुछ इंजरी है within 7 years of her marriage, and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty, same words, harassment by husband or any relative, and it is in connection with demand of dowry. तो उस डेथ को हम क्या बोलेंगे, डाउरी डेथ, एंड वो जो भी हस्बैंड है, रिलेटिव है, shall be deemed to have caused her death. ऑलमोस्ट सेम प्रोविजंस। डाउरी का मीनिंग क्या है, सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो हमने देखा, प्रॉपर्टी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और उसमें एक एक्सेप्शन भी था, दैट इज लोअर मेहर मुस्लिम लॉ। whoever commits dowry death shall be punished with imprisonment, मतलब जिसकी वजह से डाउरी डेथ हुई है, जिसने ये किया है, shall be punished with imprisonment of term which shall not be less than 7 years, उसको 7 साल की जेल मिलेंगी, 7 साल के ऊपर, एंड बट विच में एक्सटेंड टू लाइफ, टिल लाइफ, सीवियर पनिशमेंट, राइट। तो अब एसेंशियल्स क्या है इसमें कि पहले तो डेथ क्यों होना चाहिए, कुछ बर्न्स या बॉडीली इंजुरी के वजह से या उस तरीके के कुछ सर्कमस्टेंसेस में, और वो डेथ कब होना चाहिए, विद इन 7 years ऑफ मैरिज, और इसमें पता होना चाहिए कि सून बिफोर हर मैरिज, सून बिफोर हर डेथ वॉज एक्सपोज टू क्रूएलिटी और हैरेसमेंट बाय हस्बैंड, मैरिज नहीं है वो डेथ है। और द क्रूएलिटी और हरासमेंट क्यों था, फॉर द डिमांड ऑफ डाउरी। अगर ये 4 इंग्रेडिएंट्स है तो देन वी विल कंसिडर इट एज क्राइम अंडर सेक्शन 304B ऑफ इंडियन पेनल कोड, और फिर वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट है मिनिमम 7 years टू लाइफ। इस डाउरीज डेथ अवेलेबल एट कॉग्निजेबल ऑफेंस। अवेलेबल ऑफेंस क्या है, offense in which permission from the court to release the arrested person is not required. bailable मतलब the person can be bailed, यहाँ पे कोर्ट की परमिशन नहीं चाहिए तुमको टू रिलीज द अरेस्टेड पर्सन, इज नॉट रिक्वायर्ड। तो अरेस्टेड पर्सन कुछ नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करके रिलीज कर सकता है, एंड द पुलिस कैन नॉट रिफ्यूज द पर्सन। और कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, offense in which the police have the authority to arrest any person without any warrant and also have the authority to start an investigation with or without any permission of the magistrate by filing an FIR. Cognizable offense मतलब without any warrant, without any permission of the magistrate by filing an FIR, सीधा FIR फाइल करके पुलिस वाले क्या कर सकते हैं, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, खुद की कस्टडी में ले सकते हैं और उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो जो डाउरी है दैट इज नॉन बेलेबल, मतलब बिना कोर्ट के परमिशन के वो पर्सन रिलीज नहीं हो सकता, एंड कॉग्निजेबल मतलब पुलिस उसको डायरेक्टली अरेस्ट करके उसको कस्टडी में लेके इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो डाउरी डेथ इज अ नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस। So this was everything about Dowry Prohibition Act 1961. Let's go through the synopsis. Yes. So we have covered dowry as social menace. Hope you understood it. Objective and scope of the act, short title, commencement, etc. Dowry definition, penalty for giving and taking of dowry. The benefit of wife, it is to be transferred to the wife within 3 months. Change in procedural law and evidence law. Dowry prohibition officer, right? And 8A was to prove. So almost everything is covered. Hope you understood. Thank you for watching.